Hello everyone, welcome back to this channel. First of all, I want to say you all sorry that my this recording is too late. I promised you that I'll keep giving you tricks for Vedic maths for multiplication. Basically, we are going to start with multiplication today also. But I delayed in making the videos for you because this is pandemic time and we all are having families, so I was a bit busy in some things, some personal things. But now I promise you that I'll try to make videos more frequently now for you. So today we are going to continue with the same concept, single knot sandwich method, but now the trick has been changed. The trick is trick number 2 now. In the previous video we did it for multiplication by 11 and multiples of 11, but now in this video we are going to learn how to multiply with a number which is from 12 to 19. So here is the word number. So whenever I say number in maths, number means counting number. Whenever this word number is here, that means counting number, and counting numbers means complete numbers or natural numbers. So we are going to learn today how we can multiply any number. Any number means the number could have any number of digits, it could be anything. How can we multiply any number from with numbers from 12 to 19? That means we will learn how to multiply a number by 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So the rule will be same for all. So we are not going to make a big video. This will be a small video. I'll do only 3 examples with you, and then you can post your questions, your queries, your doubts, and I'll take your doubts in next video definitely. बिकॉज लंबी वीडियो थोड़ा देर तक देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, और हम कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं. तो मैं सिर्फ 3 एग्जांपल्स करके आपको दिखाऊंगी जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करनी सीखेंगे. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, once you indulge yourself into the practice of doing questions by Vedic maths, you would be able to multiply any number by these numbers within a few seconds. All what you need is dedication and practice. So with no more time, let me take my first example. So this is the first example. Suppose you have 7192. As I told you, we are going to take any number now, and we also know the concept of writing कैरीज इन वैदिक मैथ्स. हमें पता है वैदिक मैथ्स में कैरी कैसे लिखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में किया था. अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वीडियो ज़रूर ओपन करके देखिएगा, जिसमें हमने बताया था लेवल 2 में, डिफ़िकल्टी लेवल में, कि किस तरीके से हम कैरीज को लिखते हैं लेफ्ट लोअर फुट में. सो 7192, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 12 फर्स्ट, द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस ग्रुप. So we'll see how we can multiply 7192 with 12. So completely focus on the screen. As I told you that this is the number that is in the spotlight here. The number is 12. So whenever we think about the base for this number, base for all these numbers will take as 10. Although 19 is close to 20, but we'll prefer taking base as 10, because with 20 it will be a bit difficult for us to do it. With 10 it is very simple, and we know that there is only one digit, 10 in 10, only 10 in 10. So the method that we are going to apply here, this is a hint that we are going to apply SNS method. Now you should know what SNS method is. If you don't know, please watch my previous video. SNS stands for single knot sandwich method, because there is single zero, not means nothing, zero, and single because there is only 10, that is why single, and we are going to make a sandwich of this. So how we are going to make the sandwich, that is important here. So I am writing the given number as it is, which is not 12 obviously, 7192 as it is, and I am sandwiching this number between single knots. Sandwiching this number between single knots means I am putting an additional 0 in the beginning and additional 0 at the end. My number has been sandwiched between single knots, one knot in the beginning, one knot at the end. 2 सिंगल नॉट्स हमने लगा दिए हैं. अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से. किससे करना है, 12 से. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप डालकर 12 लिख रही हूँ. माय डियर फ्रेंड्स, माइंड वन थिंग, इन 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स यू माइट हैव टू राइट 12
और 13 और जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसको नीचे लिखना पड़ेगा। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ये 12 भी रिमूव हो जाएगा और मैं जो कुछ भी आगे करने वाली हूँ वो सब रिमूव हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर डायरेक्टली। तो हम 12 अभी लिख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस 12 में मेरे पास 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 2। तो मैं इस 1 को अभी के लिए येलो हाईलाइट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये 1 यहाँ पर वैदिक मैथ्स में इनसिग्निफिकेंट है, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी। हम सिर्फ 2 को यूज़ करेंगे और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन में करते हैं नॉर्मल चीज़, हम एक लाइन बना रहे हैं जिसके नीचे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास 12 है। नाउ आफ्टर दैट 12 का 2 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि मैं किस डिजिट से किस डिजिट तक एरो पुट कर रही हूँ और उस एरो के अलोंग कौन सा ऑपरेशन मीन्स the arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division. We are having these 4 basic operations. और भी होता है मॉडुलस, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन चारों की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना है मैंने एरो कैसे लगाया है और मैंने उसके साथ कौन सा साइन लगाया है। एंड कीप लुकिंग एट दी कलर ऑफ द पेन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू यूज़ सो मेनी डिफरेंट कलर्स ओवर देयर, आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा 2 है ये यूनिट प्लेस क्या है? ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा लगाया है। ये जो 2 ग्रीन ज़ीरोज़ दिख रहे हैं स्टार्टिंग में और एंड में, ये सैंडविचेस हैं, सैंडविच की ब्रेड्स हैं, ये अप एंड डाउन, ये हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो दिस ज़ीरो इज़ नॉट यूनिट प्लेस इज़ 2। तो हम इस 2 को इस 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इज़ 4। जो भी आंसर आता है कीप दिस इन योर माइंड, आपको ये याद रखना है। 2 इंटू 2 इज़ 4, इतना मुश्किल नहीं है याद रखना। 2 इंटू 2 इज़ 4। 4 में आप ऐड करोगे प्रीवियस डिजिट। जब आप 4 में प्रीवियस डिजिट विच इज़ 0 हेयर उसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 0 इज़ 4। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हेयर। 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 0 इज़ 4। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन समझाने के लिए आपको। अब ये जो 2 है ये जाएगा टेंस प्लेस पर। 2 इंटू 9 इज़ 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 9 इज़ 18। 18 में ऐड करेंगे प्रीवियस प्लेस डिजिट इज़ 2। 18 प्लस 2 इज़ 20। 18 प्लस 2 इज़ 20। 2 डिजिट्स में है तो 20 को हम लिखेंगे 2 0 20। 2 नीचे लिखा है, क्यों? क्योंकि ये कैरी है और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वैदिक मैथ्स में कैरी को हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट लोअर फुट में लिखते हैं। 2 0 20 एज इट इज़ लिख दिया, काम ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नाउ आई एम यूजिंग ब्लू कलर अगेन फॉर यू। सो ये 2 जो है अब ये जाएगा हंड्रेड्स प्लेस के पास। सो 2 इंटू 1, आई एम सॉरी, 2 इंटू 1 इज़ 2। 2 प्लस प्रीवियस नंबर 2 प्लस 9 इज़ 11। तो हम 11 को लिखेंगे 1 1 11। सो ये आपका जो मैंने नीचे लोअर फुट में 1 लिखा है ये हमारा कैरी है 1 1 11। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अगले नेक्स्ट कलर के ऊपर हम। अब ये जो 2 है ये जाएगा 7 के पास। 2 इंटू 7 इज़ 14। मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 7 इज़ 14। 14 में ऐड कर देंगे प्रीवियस प्लेस डिजिट दैट इज़ 1। 14 प्लस 1 इज़ 15। सो 15 1 5 15 2 डिजिट्स हैं तो 1 जाएगा कैरी में। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे। अब इस वाले 0 को इग्नोर नहीं करना है, इसको साथ में लेके चलना है। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। 2 इंटू 0 इज़ 0। 0 में ऐड कर देंगे प्रीवियस नंबर विच इज़ 7। तो हमने 7 यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चंस में कैरीज आएंगी, हर स्टेप में कैरीज आएंगी। इसकी हो सकता है ना भी आए कहीं पर, बट कैरीज आती ही हैं। तो आपको घबराना नहीं है कैरीज को देखकर, उनको बस लिखते जाओ। सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस लिखेंगे मेन पार्ट में और बाकी सब हो जाएगा कैरी में। सपोज आपका 3 डिजिट आ जाता है
127 आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करा तो 127 आ गया। तो 12 विल बी इन कैरी एंड 7 विल बी इन दी नॉर्मल प्लेस। ऐसे भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ऐसे भी एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे। अब इसके बाद आपको पता है वैदिक मैथ्स में क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। नहीं पता, नहीं याद है आपको, पूरी वीडियो देखने में प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता देती हूँ। बैलेंसिंग इज एडजस्टमेंट ऑफ कैरीज। और जब हम ट्रेडिशनल मैथ्स की बात करते हैं तो हम कैरीज को कहाँ एडजस्ट करते हैं, हम कैरीज को एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट प्लेस पर, नेक्स्ट प्लेस के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कैरी है, ये ऐड हो जाएगी नेक्स्ट प्लेस में, ये वाली कैरी नेक्स्ट प्लेस में ऐड हो जाएगी, ये वाली कैरी भी नेक्स्ट प्लेस में ऐड हो जाएगी। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 4 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 2 + 1 इज़ 3, 5 + 1 इज़ 6, 7 + 1 इज़ 8, 8 6 3 0 4 इज़ माई आंसर। यकीन नहीं है तो जल्दी से चेक कर लो कैलकुलेटर से, आपको यही आंसर मिलेगा। और मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझाने में, धीरे धीरे बता रही हूँ मैं आपको। बट जब आप सीख जाओगे, जब आपको करना आ जाएगा, आप बहुत जल्दी बहुत क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी मैंने इजी एग्जांपल लिया था। आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल नाउ। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अब हम। एग्जांपल नंबर 2, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं, सारे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें यूज़ करो, साथ में अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करना। दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कैलकुलेटर्स पे डिपेंडेंट हो गए कैलकुलेशन के लिए तो इंडिया का फ्यूचर खतरे में है। इंडिया के लोगों का ब्रेन जो है बहुत अच्छा माना जाता है मैथ्स के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, साइंस के लिए। छोड़े नहीं, उसको करते रहें, किसी भी तरीके से उसको ज़िंदा रखें। एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसी थॉट के साथ। एग्जाम्पल 2 क्या है, सपोज़ मैं एक नंबर लेती हूँ, अब आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रही हूँ। 5 9 2 8 7 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 17 से। 17 इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो दूसरा नंबर भी लिया है वो भी कोई छोटा नहीं है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 60,000। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आपने 17 देखा, जैसे ही आपने 17 देखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेस क्या हो जाएगा 10। बेस 10 है, यानी पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, प्लीज़ कॉप अप। बेस 10 हो जाएगा तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंगल नॉट सैंडविच मेथड यूज़ करने वाले हैं। सिंगल नॉट सैंडविच मेथड क्या कहता है, सिंगल नॉट सैंडविच मेथड कहता है कि नंबर को लिख दो एज इट इज़, जिसको मल्टीप्लाई करना है 17 से, इसको सैंडविच कर दो सिंगल नॉट्स में, तो आगे एक ज़ीरो पीछे एक ज़ीरो। फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से। अब मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे स्टेप्स कम करेंगे, तो मैं धीरे धीरे स्टेप्स कम कर रही हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए। आप देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए 17। तो 17 का 1 तो यूज़ नहीं करने वाले हम, दिमाग में क्या रहना चाहिए 7। क्या रहना चाहिए दिमाग में 7। आप इसको विजुअलाइज करेंगे, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि वैदिक मैथ्स में हमें टाइम बचाना ही सीखना है। कैसे हम टाइम सेव करना सीखेंगे, हमें यही सीखना है। तो 7 हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग 7। मैं धीरे धीरे स्टेप्स आपको रिड्यूस करना सिखा रही हूँ। तो जब मैंने 7 को विजुअलाइज किया तो मुझे पता है जो भी 7 है वो 7 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 7 7 ज़ार 49, 49 में प्लस कर देंगे 0, तो मेरे पास आएगा 49। तो 49 लिखा मैंने, 4 9 49। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 7 8 ज़ार 56, 56 प्लस 7 63, तो क्या हो जाएगा 63। 6 विल बी इन दी कैरी। अब हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 8 इज़ 22, सो 22। अब हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 7 9 ज़ार 63, 63 प्लस 2 65, 65। अब हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 9 44, सो 44। फिर हमें 7 को मल्टीप्लाई, ये स्टेप भूलना मत, 7 को मल्टीप्लाई करना है 0 से भी। 7 0 ज़ार ज़ीरोज़, 0 में जब ऐड करेंगे 5 तो आएगा 5। ये स्टेप भूलना नहीं है, लास्ट वाला स्टेप भूलना नहीं है, इसी में गलती होती है, हम इस 0 को भूल जाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला 0 जो है
एक्सट्रीम राइट वाला 0 वो यूज़ नहीं हो रहा कहीं पर, तो हमें लगता है लेफ्ट वाला भी यूज़ नहीं होगा। इसको भूलना नहीं है, 0 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितने भी ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं, कैरीज हैं। हमें इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, इट विल बी एडेड टू दी नेक्स्ट नंबर। तो ये ग्रुप्स ऐसे बन रहे हैं, ऐसे ऐड हो रहे हैं नेक्स्ट में। तो जब मैं इनको एडजस्ट करूँगी 9 के साथ कुछ नहीं है तो 9 आएगा एज इट इज़। 3 + 4 = 7, 6 + 2 = 8, 5 + 2 = 7, 6 + 4 = 10। कोई बात नहीं, एक और कैरी आ गई। 5 + 4 = 9, एक और कैरी आई है हमारे पास। उसको देख के घबरा नहीं जाना, इसको अगले स्टेप में एडजस्ट कर दो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही स्टेप में कर पाओगे। आपको पता है 6 + 4 10 है तो 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, तो आप वो भी कर पाओगे। बट कोई बात नहीं, 1 2 3 4 बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको लिख के देखो, 2 स्टेप में बैलेंसिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप वो टाइम भी अपना बचा पाओगे। सो 9 + 1 विल बिकम 10 और बाकी सारे डिजिट्स सेम हैं, तो मैं बाकी सबको एज इट इज़ नोट डाउन कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई आंसर। समझा रही हूँ आपको तो भी मुझे 1 मिनट ही लगा होगा, जब खुद करेंगे सॉल्व तो बहुत कम टाइम लगेगा। बट इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर मैं एरोज भी नहीं लगाऊंगी, ऑपरेशंस भी नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में 12 लिख के दिखाया था, सेकंड एग्जाम्पल में नंबर नहीं लिखा 17, डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एरोज और ऑपरेशंस लिख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एरोज भी ना लगाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब इसके साथ हम लास्ट एग्जाम्पल रहेगा आज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला छोटी सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप एंड तक देख सको और सीख सको। तो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सपोज हमारे पास है 3 1 7 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 19। इससे बड़ा क्या होगा इस ग्रुप में, 19 से बड़ा तो कुछ नहीं होगा, तो 19 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब मैं आपको नहीं बता रही कि 19 है तो बेस 10 लेंगे, एसएनएस लगेगा, ये सब नहीं। आपको देखते ही ये सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए, आपको फ्लैश होनी चाहिए आपकी मेमोरी में कि 19 से मल्टीप्लिकेशन है तो सिंगल नॉट सैंडविच लगाएंगे। तो आप अपने आप ही क्वेश्चन में इमेजिन कर लोगे नॉट्स। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको लिख रही हूँ दोबारा, बट अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मैं नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर निकालती हूँ। 3 1 7 4 5। तो हम नॉट्स को सैंडविच बनाएंगे, इमेजिन करेंगे। अब हमें लिखने हमारे आंसर्स। कहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है। 19 से करना है, 9 5s आर 45 + 0 45, 9 4s आर 36 +4 +5 41। I'm sorry. 9 7s are 63 +4 67, 9 1s are 9 +7 16, 9 3s are 27 +1 28, 9 0s are 0 +3 is 3। कुछ भी नहीं करा मैंने, डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करी। आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इस वाले क्वेश्चन में भी 2 स्टेप में करेंगे हम, आपको समझाने के लिए, वरना 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो जब ऐसे बैलेंसिंग कर रहे हैं हम तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 5 एज इट इज़ आएगा नीचे, 4 + 1 5 हो गया, 7 + 4 11 होता है। अगर मैं एक ही स्टेप में बैलेंसिंग करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी, 7 + 4 11 होता है, तो एक एडिशनल कैरी यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट पे जाती है ना, तो नेक्स्ट वाले ओवल के साथ हमने उसको लगा दिया। 6 + 6 = 12 + 1 = 13, फिर से 1 आ गया। 8 + 1 9 + 1 10, फिर से 1 आ गया। 3 + 2 5 + 1 6। तो मैंने एक स्टेप बचा के आपको दिखाया है कि हम कैसे, अगर हमारे पास मल्टीपल लेवल्स में कैरी हो तो हम उसको कैसे सिंगल स्टेप में बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप 2 स्टेप में बैलेंसिंग करें, नो प्रॉब्लम। 3 स्टेप में करें, नो प्रॉब्लम। जितने स्टेप्स में होती है करें, बट छोड़े नहीं।
बैलेंसिंग को देख के छोड़ना नहीं है। बैलेंसिंग का सिंपल एक फंडा है, कैरी हमेशा नेक्स्ट प्लेस पे जाता है, यही चीज़ ध्यान रखनी है। जहाँ पर कैरी आई उसको नेक्स्ट प्लेस पे लेके चले जाना है। तो आज हमने 3 एग्जांपल्स करे। हमने सिंगल नॉट सैंडविच मेथड की 3 ट्रिक्स कर ली हैं बेसिकली, इसको ट्रिक 3 बोलना चाहिए था। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 किया, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 11 किया। ये दोनों चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में करी थी। दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्या करा है, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स फ्रॉम 12 to 19। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी जिसमें आपको मिलेगा डबल नॉट सैंडविच मेथड। आप देखते रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे आगे आपसे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।